Hello friends. So today we are going to start with question number 16 of your chapter number 5, that is admission of a partner, right? अब question number 16 में we have given with Parshvi and Aneri other partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1, right? 2:1 का ratio हमें दिया हुआ है. Balance sheet of the firm is also given. कैपिटल पार्श्वी और अनेरी का दिया है. कैपिटल रिजर्व इज ऑल्सो देयर. वर्कमैन सेविंग अकाउंट एंड वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. You should understand that both of them are liability and we are not supposed to distribute the same, right? चलो, reserves नहीं है, ये liability है, right? Then 10% loan from bank, creditors, goodwill, building. See, old goodwill is there. So first in our third step, first part will be what? Distributing the old goodwill amongst the old partner in old ratio, right? So then building, furniture, stock, debtors and cash are there. चलो फिर क्या दिया हुआ है? On 1/4/16 they admitted Henshi as a new partner. Just a minute. They admitted Henshi as a new partner on the following conditions. New profit and losses sharing is to be 3:4:2. Henshi brings 40,000 as capital. Interest on bank loan is outstanding for 1 year. Personal expense of Parshvi is paid by the firm to profit and loss account rupees 5600. पर्सनल एक्सपेंस था पार्श्वी का जो फर्म ने पे कर दिया और गलती से P&L डेबिट में लिख दिया है, तो वी विल रिवर्स इट आउट, विल डू इट. देन deconstruction expense is paid by Aneri rupees 8,400. We'll see what to do about it. Goodwill is valued at 90,000. Parshvi and Aneri will maintain their capital. Parshvi and Aneri will maintain their capital in the new firm in their new profit sharing ratio by taking Henshi's capital as base. In their new firm, in their new profit sharing ratio by taking Henshi's capital as a base, right? We'll understand this. मैं इतने आराम से इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठता जाए कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है. We'll see to it. मैं properly explain करूँगी आपको afterwards. For this purpose, necessary adjustments should be made in partners' current account. In partners' current accounts. Again, in partners' current accounts. Prepare necessary accounts and balance sheet after admission, right? So we are given with the following information. So let's start preparing the sum. मैंने columns बना के रखे. What you are supposed to do is you are supposed to first of all write down the balances of capital accounts and cash in bank, right? So let's do it quickly. By balance brought down, it is 91,000 and 84,000, correct? In our cash account, the balance is to balance brought down, it is 56,000, right? चलो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. देन द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? सेकेंड स्टेप इज व्हाट कि भाई कुछ भी अगर रिजर्व्स पड़ी हो तो वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. इज देयर एनी रिजर्व और समथिंग लाइक दैट? यस, कैपिटल रिजर्व इज देयर एंड एनी सच फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं है और कोई रिजर्व्स भी नहीं है. क्या करेंगे? फटाफट से कैपिटल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो दैट इज 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 14,700 is the capital reserve that we are supposed to distribute amongst the partners. So partner के capital account में I'll be recording by capital reserve, it is 9,800 and 4,900. What you are supposed to do is you are supposed to use calculators, that's all. मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके ही लिख रही हूँ, आपको भी वैसे ही करना है. जो भी अमाउंट है उसको 2:1 जो भी रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो वट एवर इट इज, यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट? चलो फाइन, सेकेंड स्टेप इज डन. देन क्या दिया हुआ है थर्ड स्टेप में? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला गुडविल का पॉइंट आता है. तो गुडविल इज
21,000 which we are supposed to distribute amongst the old partner in their old ratio. So I'll be doing the working note in a new fresh page only for goodwill. First entry for the old goodwill that we are already having will be Parshvi's capital account debit 14,000. 2:1 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ. Aneri's capital account debit, and it is quite easy to distribute 21,000 in 2:1, right? Capital account debit 7,000 to goodwill account 21,000. तो ये हो गया ओल्ड गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. फॉर न्यू गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर न्यू गुडविल का थिंग, व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू look at the new ratio and old ratio, whatever is given. 3:4:2 is there, and the old ratio is 2:1. So let's calculate the sacrificing ratio first. 3:4:1 was there, I suppose. Just a minute, let me reconfirm. 3:4:2, right? So let's calculate the sacrificing ratio amongst the partners. Parshvi, Aneri and Henshi. Old ratio is 2/3 and 1/3. New ratio is 3/9 to 4/9 to 2/9, right? ये मैंने old और new ratio लिखा. Now we are supposed to calculate the sacrificing ratio. Sacrificing ratio will be old ratio minus new ratio, that we all already know, right? चलो अब पार्श्वी का old ratio is 2/3 minus new ratio is 3/9. We will be writing this, taking the LCM as 9. So 6 minus 3 comes to 3/9, right? Then Aneri 1/3 minus 4/9 comes to 3 minus 4. Now this is something unusual. We have got what? Minus 1/9. Is it so? Minus 1/9. ये कैसे हो गया मैम? अब तक के इतने सारे सम्स देखे, कभी भी माइनस में रेशियो आता हुआ नहीं देखा है. और हमने 4th चैप्टर में माइनस में देखा था, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि माइनस अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि दिस इज अ गेन, करेक्ट. आपको याद होना चाहिए 4th चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी डन इट, राइट. इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू of this ratio in negative, which means कि हमने ये क्या फाइंड करा? गेनिंग रेशियो फाइंड करा. तो कैन आई से Aneri is gaining over here, and see whenever the partner is gaining, even at the time of admission the existing partner is gaining, then that existing partner will also bring out the premium for goodwill. Whenever at the time of admission of the partner the existing partner is gaining, if we are getting the gaining ratio of the existing partner, then the existing partner is also supposed to bring out the goodwill share. Understood? क्यों? क्योंकि भाई एडमिशन भी करवा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग भी दे रहे हैं, एंड देन ऑल्सो द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज गेनिंग. एंड इफ इट इज द केस, तो उसको भी तो बेनिफिट मिल रहा है. एंड द पर्सन, इफ द पर्सन इज गेटिंग द बेनिफिट, ही इज सपोज टू पे अस द प्रीमियम फॉर गुडविल. उसका कुछ रेशियो चेंज करके हमने उसको बेनिफिट ही करवा रहे हैं. इन दैट केस वी आर सपोज टू, आई मीन वी मीन्स फर्म इज सपोज टू टेक द प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट. सो हियर नाउ हेंशी का कितना, मतलब चलो एक बार देख लेते हैं क्या हमें क्वेश्चन दिया. दिस गेन इज फाइन. अब क्या बोला गया है? हेंशी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, वो देखते हैं. एंड गुडविल का कुछ बोला है. येस, गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000. ओनली दे हैव सेड दैट गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000, नथिंग एल्स, राइट. सो हाउ विल आई कैलकुलेट द सेम? गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000.
Henshi's goodwill share 90,000 into 2 by 9, correct? So it will be 20,000. And same way, Aneri's goodwill share. How will we do that? अनेरी का गुडविल शेयर कैसे मिलेगा? ये -1/9 आया है, that's all. 90,000 into 1/9 comes to 10,000. I hope it is legible enough. हाँ, आपको दिख रहा है properly whatever I am writing. So 10,000 will be Aneri's share, right? चलो ये हो गया. Now let's pass the journal entry. Here Henshi is she bringing the goodwill in cash? ऐसा कुछ दिया हुआ है? No, nothing is given like that, right? कि हेंशी कुछ गुडविल का शेयर कैश में लेके आ रही है, ऐसा कुछ नहीं दिया. इनफैक्ट हमें नीचे ऐसा दिया हुआ है कि भाई नेसेसरी एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करने हैं और हेंशी का कैपिटल अकाउंट का बेस लेके हमें नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ढूंढना है, राइट? ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में जो हमें पहले समझ में नहीं आया है. वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन, राइट? चलो, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? हेंशी को मैं डेबिट करूंगी, ऐसा मैंने आपको सिखाया है, राइट? सी, whenever the partner is bringing the goodwill in cash, we are debiting the cash. Whenever the partner is not bringing the goodwill in cash, we are debiting the partner's account itself, right? So here I'll be writing Henshi's current account debit 20,000. Aneri is also bringing in the goodwill. Or I can say Aneri is also supposed to bring us the premium for goodwill. So Aneri's capital account debit and everything will be given to what? कौन नाम क्या है? या पार्श्वी. Given to whom? पार्श्वी. Parshvi's capital account 30,000. The question will arise over here कि मैम आपने हेंशी में करंट अकाउंट लिखा और अनेरी में कैपिटल अकाउंट लिखा, ऐसा क्यों हुआ कि भाई आपने हेंशी में करंट अकाउंट लिखा है और अनेरी में कैपिटल अकाउंट लिखा है? सी, लेटर ऑन आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग द सेम, बट स्टिल मैं आपको अभी थोड़ा बहुत आइडिया दूँ. तो हमें ऐसा बोला गया है कि भाई हेंशी का जो कैपिटल अकाउंट है ना, उसको हमें बेस लेके पार्श्वी और अनेरी की नई कैपिटल का बैलेंस फाइंड करना है. अगर मैं ये गुडविल का जो शेयर है उसको हेंशी के कैपिटल अकाउंट में लिख लूँ तो हेंशी की कैपिटल पे इफेक्ट आएगा. कैन आई से हेंशी की जो कैपिटल है दैट इज व्हाट शी इज ब्रिंगिंग 40,000, राइट? तो मुझे उसको बेस लेते हुए पार्श्वी और अनेरी दोनों का लास्ट में यानी कि क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट करना है. अगर मैं उसको बेस ले रही हूँ, दैट इज हेंशीज कैपिटल को बेस ले रही हूँ, देन आई शुड अंडरस्टैंड कि मैं अगर गुडविल की वजह से उसकी कैपिटल को डाउन करूँगी तो पार्श्वी एंड अनेरी दोनों की कैपिटल ग्रेजुअली डाउन होगी. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, वी विल अंडरस्टैंड इन आवर लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मैं जो कहना चाह रही हूँ, राइट? चलो, ये हो गया हेंशीज करंट अकाउंट डेबिट, अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट, करेक्ट? अब क्या करेंगे? सिंपल सा पोस्टिंग कर देंगे. और दूसरी बात कि भाई हेंशी की कैपिटल अकाउंट मतलब वो 40,000 लेके आई है कैश में, सो वी विल बी राइटिंग दैट ऑल्सो बाय कैश अकाउंट 40,000. Then let's do the ledger posting to goodwill account. It was 14,000 and 7,000, correct? And then Henshi's current account was debited to Parshvi's capital account 20,000. Aneri's capital account was debited to Parshvi's capital account 10,000. And here I'll be writing in Parshvi's capital account by Henshi's current account 20,000
by Aneri's capital account 10,000. I hope it is clear to you, right? इतना मैंने सिर्फ और कुछ नहीं करा, मैंने जो एंट्रीज पास करी उसका लेजर पोस्टिंग किया है, दैट्स ऑल. हेंशी के करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे ऑपोजिट साइड के पर्टिकुलर, सेम विद अनेरीज कैपिटल अकाउंट में और डेबिट साइड पे ऑपोजिट साइड के पर्टिकुलर्स, देन पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट साइड के पर्टिकुलर. सिंपल जो 11th स्टैंडर्ड लेजर पोस्टिंग है वही हुआ है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं हुआ है, राइट. चलो ये हो गया कंप्लीटली फाइन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब क्या करेंगे, स्टेप 3 का फर्स्ट पोर्शन इज डन. नाउ let's start solving the other adjustments that they have given to us. Interest on bank loan is outstanding for 1 year. That is something which is an expense which is we are supposed to pay. Loan कितना है, 35,000 का है, and उसका 10% comes to 3,500, right? So let's record the same. Oh, sorry. So to इंटरेस्ट ऑन लोन डेफिनेटली एक्सपेंस हो गया ना अपने लिए, पे करना बाकी रह गया है, तो लायबिलिटी भी हुई एज वी आर सपोज टू पे. सो 10% बैंक लोन 35,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 3,500, that comes to 38,500, right? Then what's next? We are solving it one by one, right? And I am doing this example very slowly so that you can understand the same, because ये example कुछ ऐसा है जो आपको शायद एक बार नहीं, आपको 2 बार वीडियो भी देखना पड़े, शांति से समझना पड़े. वेरी गुड एग्जाम्पल इज दिस. शांति से दिमाग खुला रख के करना तो बेटर समझ में आएगा, राइट. चलो. Then personal expense of Parshvi paid by the firm is debited to profit and loss account, that is 5,600. पार्श्वी के कुछ पर्सनल एक्सपेंस है, तो कहना इसे पार्श्वी के पर्सनल एक्सपेंस इज नथिंग बट द ड्रॉइंग्स. जो फर्म ने कहाँ लिख दी है पे एंड एल डेबिट में, वो तो फर्म ने गलती कर दी ना. फर्म इज सपोज टू रिकॉर्ड इट एज अ ड्रॉइंग्स ओनली, बट फर्म ने कहाँ लिख दी है पी एन एल डेबिट में, तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे बाय Parshvi's capital account, and here I'll be writing drawings. उल्टा करेंगे ना, undo what is wrong, right? We should know the concepts of 11th standard, then only we'll be able to understand these things. 2 drawings, 5,600, right? चलो फिर क्या दिया हुआ है, reconstruction expenses paid by Aneri rupees 8,400. Aneri is paying the expenses, but expenses are of the firm, right? Paying pay कौन कर रहा है, Aneri, but expense किसके है, firm के है. So I'll be recording over here to reconstruction expense, but I'll be recording like Aneri's capital account. Why so? Because Aneri is paying the same 8,400. And that we will be recording over here by reconstruction expense Aneri 8,400, right? So we are done with this particular transaction. Then goodwill is valued at 90,000, that we are done with. Then Parshvi and Aneri will maintain their capital. Okay, fine. The last portion. But before moving further with the last portion, let's write whatever is left in our balance sheet. जो भी रह गया है, that is this workman is left, creditors are left, the goodwill is done, then building, furniture, stock, debtors, everything is left, right? So let's record the same. फटाफट से record कर लेते हैं. Then we will be moving ahead. So workman saving account is there.
7,000. Workman profit sharing is there, 8,400. Creditors are also there, 39,900. द क्वेश्चन में अराइज मैम ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी रिवैल्यूएशन हो ही नहीं रहा, तो इट इज़ फाइन. नहीं हो रहा है तो इट्स ओके. जो दिया हुआ है हमें अकॉर्डिंगली चलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट. चलो फिर बिल्डिंग इज देयर, 1,40,000. फर्नीचर इज देयर. मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, आपके क्वेश्चन में से सिंपली अमाउंट्स लिख रही हूँ, दैट्स ऑल. 28,000. स्टॉक इज देयर, 18,200. डेटर्स आर देयर, 16,800. दैट्स ऑल. बात ख़त्म हो गई. हमने जो भी कुछ था लेफ्ट आउट था बैलेंस शीट में वो सारा कुछ लिख दिया. नाउ द मेजर पोर्शन बिगिंस. नाउ द मेजर पार्ट बिगिंस. अब हमें लास्ट लाइन को वापस से शांति से पढ़ना है, समझना है. पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म, इन द न्यू PSR. ओके फाइन. पार्श्वी एंड अनेरी नई फॉर्म में नई कैपिटल न्यू PSR में मेंटेन करेंगे. दैट इज़ ओके. समझ में आया कि भाई जो नई कैपिटल का मतलब क्या हुआ, न्यू फॉर्म की न्यू कैपिटल यानी कि अपनी क्लोजिंग कैपिटल, बिकॉज वी आर मेकिंग द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. सो नई फॉर्म हो गई आफ्टर एडमिशन मीन्स, और नई फॉर्म की नई कैपिटल दैट इज नथिंग बट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट, राइट, इज मेंटेन्ड बाय देम इन द न्यू PSR. फाइन. टेकिंग Henshi's capital as base. Taking what? Henshi's capital as base. यहाँ पे क्या हुआ है, हेंशी की कैपिटल को हमने एज अ बेस ट्रीट करा है. सो आई विल बी रिकॉर्डिंग ओवर हियर, आई मीन आई विल बी राइटिंग ओवर हियर. समझना अच्छे से. हाँ. What is the ratio of the partners? What is the ratio that is given in the question? That is the new ratio. Let me use a different colored pen so that you can make a distinguishment between the two. New PSR is T/9, 4/9. Rather, I would like to write it like this only. 3:4:2, right? That is Aneri and Henshi, right? अब हेंशी की जो कैपिटल है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखें कि भाई हेंशी की कैपिटल को बेस लेना है. सो लेट्स लुक एट द कैपिटल ऑफ द हेंशी. हेंशी की कैपिटल कितनी है, कितना बैलेंस बचा है हेंशी के कैपिटल में, इफ यू कैन सी. तो हेंशी की कैपिटल में आपको कुछ 40,000 दिख रहे हैं. आई एम रिकॉर्डिंग इट ओवर हियर, 40,000. हियर द बैलेंस विल कम 40,000 टू बैलेंस carried down. It is what? 40,000. Now what they have asked us to do is कि भाई ये जो आपने हेंशी की कैपिटल का बैलेंस फाइंड करा ना, उसको बेस लेते हुए बाकी के दो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस फाइंड करो. चलो ये भी कर लेते हैं, कैसे करना है देख लेते हैं. कहना इसे कि भाई इसका शेयर 2 था तो उसका बैलेंस जो है वो 40,000 है. When the share is 2, the balance is 40,000. Then how much at 4 and how much at 3? See, new PSR में हमें रखना है नई कैपिटल को, right? By taking Henshi's capital as base, right? So Henshi's capital is 40,000, right? So क्या नहीं से 2 शेयर पे उसकी कैपिटल है 40,000, तो 4 शेयर पे अनेरी की कितनी होगी, और 3 शेयर पे क्या नाम है, पार्श्वी, या आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस, पता नहीं क्यों. तो 2 पे 40,000 है, तो 4 पे कितना एंड 3 पे कितना, एंड वी आर डूइंग जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट्स ऑल. सो यू विल बी गेटिंग 80,000 ओवर हियर एंड यू विल बी गेटिंग 60,000 ओवर हियर, राइट. 80,000 और 60,000 हमें मिल गए, करेक्ट. हम और कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमें मिला दैट इज 80,000 एंड 60,000, दैट इज नथिंग बट द बैलेंसेस ऑफ द partners capital account. So here I'll be writing a minute here.
I'll be writing 80,000, sorry, it was 60 over here, so 60,000 एंड 80,000. ये मुझे क्या मिला, मेरे पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस मिला है, राइट. अब क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, इसका मतलब क्या कि मैम क्या ये अकाउंट टैली हो गया दोनों का, अब कोई बैलेंसेस नहीं बचेंगे, दोनों में अकाउंट्स टैली हो गए. द आंसर इज नो. हमें क्या बोला है, आप क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, लास्ट लाइन को वापस से पढ़ो. वी आर सपोज टू एडजस्ट वट एवर इज देयर, नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट में. लेट्स अंडरस्टैंड द सेम, लेट्स कैलकुलेट. मैं कैलकुलेट करूँगी तो ही आपको पता चलेगा, एज सच बाकी पता नहीं चलेगा. तो यहाँ पे आप पार्श्वी के कैपिटल अकाउंट का टोटल करो, जस्ट टोटल इट आउट. पहले पार्श्वी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करके बोलो, व्हाट इज द 91,000 प्लस 9,800 प्लस 20,000 प्लस 10,000 comes to what, 1,30,800, राइट. 1,30,800. अब ये 1,30,800 में से 14,000, 5,600, दैट्स ऑल. नहीं, जस्ट अ मिनट, आई हैव फॉरगॉटन समथिंग. यस, रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमने जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट हियर इन दिस केस इट इज अ लॉस, और वो हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा है, राइट. थैंक गॉड, अदरवाइज आई वुड be recording the video once again. So let's calculate it jaldi se. 11,900 में से 5,600 को माइनस करो, you will be getting what, 6,300 over here. So by partners capital account, I thought so, why revaluation account balance is not there. Anyways, Parshvi and Aneri 6,300 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो 4,200 and 2,100, करेक्ट. सो योर, आई एम रिकॉर्डिंग इट ओवर हियर टू revaluation account. 6,300, sorry, 4,200 and 2,100, right. चलो डन. अब 1,30,800 जो हमने फाइंड करे हैं उसमें से 5,600, 4,200, 14,000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ₹60,000, वो सभी को माइनस करो, कुछ तो बैलेंस आपको मिलेगा. फटाफट से कैलकुलेट करो और माइनस करो, चलो जल्दी से. यू विल बी गेटिंग व्हाट, कुछ मिला, और वो क्या मिला, 47,000 मिला. इसको मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, टू करंट अकाउंट. इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगी, पार्श्वी के करंट अकाउंट में, बाय कैपिटल अकाउंट. आई विल बी रिकॉर्डिंग 47,000 ओवर हियर. Understood? This is what they meant by telling us that whatever adjustments are there will be recorded in partners current account, meaning thereby accordingly हमें जो बैलेंस बच रहा है even after deducting the closing balance will be ट्रांसफर टू वेयर, पार्टनर्स करंट अकाउंट. और मुझे आपको अब वो समझ में आया होगा गुडविल वाला पॉइंट कि भाई मैंने हेंची के कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं लिखा और करंट में क्यों लिखा. द रीज़न बीइंग आई एम सपोज टू टेक द कैपिटल अकाउंट ऑफ हेंची एज अ बेस. अगर मैं हेंची के कैपिटल अकाउंट को बेस ले रही हूँ और गुडविल को भी हेंची के कैपिटल अकाउंट में ही डाल रही हूँ, उसका मतलब मैं कैपिटल को डिक्रीज कर रही हूँ, कम कर रही हूँ. वाई? बिकॉज मैं हेंची के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखती अगर वो और डेबिट पे लिखती तो उसका कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड, और वो रिड्यूस होता तो रिस्पेक्टिवली पार्श्वी एंड अनिरी दोनों का कैपिटल भी रिड्यूस होता, और मुझे वो नहीं करना है, राइट. क्यों? क्योंकि मुझे हेंची के कैपिटल को बेस लेके नए फर्म की कैपिटल बनानी है. अंडरस्टूड? चलो फिर ये हो गया, मैंने यहाँ लिख लिया. अब अनिरी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड पे देखो, प्लस माइनस करो फटाफट से.
आई फील आपका डेबिट साइड का बैलेंस वुड बी मोर. 99,100 आ रहा है इधर. यस, 99,100. उसमें से 8,400, 4,900 एंड 84,000 माइनस करो, 8,400 माइनस करो. So you will be getting some balance that is of rupees 1,800 over here. 1,800 मिला कुछ आपको बाय करंट अकाउंट. ये एडजस्ट कहाँ करना है? करंट अकाउंट में. सो आई विल बी रिकॉर्डिंग इट ओवर हियर टू कैपिटल अकाउंट 1,800. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू द कैलकुलेशन. अब सिंपल हो गया. कैपिटल अकाउंट को क्लोज करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं और फिर हम कैपिटल और करंट दोनों का बैलेंस शीट में लेके जाएंगे. नॉट टू वरी. सो 20,000 विल बी देयर, 20,000 विल बी ओवर हियर. So by balance carried down it will be 20,000. Then again 1,800 is there, 1,800 is here, so here again it will be 1,800 and here it is 47,000, 47,000. So here I'll be writing to balance carried down 47,000. यहाँ पे कौन सा कहाँ जाएगा in balance sheet that you should know. हाँ, that I expect कि उतना तो हमें आता है कि कौन सा बैलेंस मुझे कहाँ लिखना है. तो हियर टू बैलेंस करके 60, 80 एंड 40 है विच वी विल बी रिकॉर्डिंग इन अवर कैपिटल अकाउंट. सो अ मिनट, बैलेंस शीट हियर, कैपिटल अकाउंट, पार्श्वी, अनेरी, हेंशी. Let me Parshvi, Aneri and Henshi. Fine. Parshvi ka it is 60,000, it is 80,000 and it is 40,000. So total comes to 1,80,000. Then you can see Parshvi के current account में there is a balance of 47,000. So to Parshvi's 2 तो नहीं आएगा, sorry. Parshvi's current account will be recorded over here in balance sheet. Parshvi's current account, it has to be 47,000, the balance that we have found out. Now current account यहाँ पे असेट साइड पे आएंगे क्योंकि डेबिट बैलेंसेस है दोनों का, अनेरी एंड हेंशी दोनों का. 1,800 and 20,000 दैट कम्स टू 21,800. ये हो गया. मैंने कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस लिख लिया. नाउ आई विल बी रिकॉर्डिंग द कैश एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस. इसमें ऐसा सच कुछ करना नहीं है. 56 and 40 इज देयर, सो आई विल बी रिकॉर्डिंग इट जस्ट एज इट इज. 96,000 by balance carried down 96,000 that we will be recording in our balance sheet. Cash and bank 96,000 and just make the total of the balance sheet फटाफट से. 180 plus 47,000 plus 38,500 plus 7,000 plus 8,400 and plus 39,900. 3,20,800 and over here also it will be 3,20,800, right? So this is how you are supposed to calculate the sum. See, मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट का यूज़ किया. मैंने यहाँ पे आपको ये सिखाया कि भाई whenever the adjustment is said in the question, अगर ऐसा बोला गया है कि पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, उसको नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के साथ कंपेयर करते हुए हमें लिखना है. इन दैट केस वी आर सपोज टू रिकॉर्ड द बैलेंसेस इन सच मैनर. करंट अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी लिखना है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ 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 सी दिस वीडियो ट्वाइस. आप एक बार बंद करके, एक बार भले मेरे साथ आप लिख लो, कर लो क्वेश्चन पूरा अच्छे से, नो इश्यूज़, पर एक बार बंद करके वापस से अगेन ये क्वेश्चन खुद से करना. it will be giving you a great understanding afterwards, right? So we are done with the question. Thank you.